Hey, good morning student. Welcome you all to TSN online classes. So today we will start the chapter number 2, which is titled as The Thief Story, written by Ruskin Bond. So as you all know, we have already done the first half of this story. Alright, so today we'll start the second part of this particular story. So before starting the chapter or the second part of this story, we will see what we have discussed in our previous video or in our part 1. All right. So as you all know that in this chapter we have two characters. So one is Anil and second is Hari Singh. So Anil, who is 25 years old, a young boy, and Hari Singh, who is 15 years old and he is a thief. वो क्या है? वो thief है. So once how they met with each other means Anil or Hari Singh. So once Anil was watching the wrestling match, that time Hari Singh approached him and asked for a job. And Anil was a very gentleman type person and was very simple. So Anil believed him and give him the job. All right, but Hari Singh was expert thief. Hari Singh was an expert thief, but and Anil was very simple person. तो लेट्स सी कि जब अनिल के हाउस में वो क्या करता था, ही यूज टू मेक मनी वाइल बाइंग सप्लाईज फॉर हिम. वो 1 रुपी उसमें से अपने पास रख लेता था. ऑलराइट, जब वो भी सप्लाईज पे जाता था, कुछ चीज़ें खरीदता था, उस टाइम 1 रुपीज़ अपने पास रख लेता था. ओके, सो नाउ लेट अस सी कि व्हाट हैपेंड नेक्स्ट इन द स्टोरी. ऑलराइट, Anil was at sleep. A beam of moonlight stepped over the balcony and fell on the bed. So Anil सो रहे थे. Alright, here the word beam. ये जो आपको येलो बॉक्स दे रखा है, यहाँ पे सारी ग्लॉसरी है. आप इसे इफ़ यू वांट तो आप इन्हें रफ कॉपी में नोट कर सकते हैं या वीडियोस को बार बार वॉच कर सकते हैं. Alright, so a beam means a ray or shaft of light or sunlight you can say. तो जो सनलाइट मतलब लाइट थी, मून लाइट. ओके, अ रे और शेफ्ट ऑफ लाइट. सो मून लाइट है. स्टेप्ड ओवर द बैल्कनी एंड फेल ऑन द बेड. सो जो हरी सिंह था वो बैल्कनी में सोता था, तो बैल्कनी में भी वो मून लाइट थी एज वेल एज ऑन द अनिल बेड. ऑलराइट, आई सेट अप ऑन द फ्लोर कंसिडरिंग द सिचुएशन. If I took the money, I could catch the 10:30 express to Lucknow. So here, as we all know, Hari Singh was an expert thief और उसकी जो आदत है स्टीलिंग करने की वो कभी जा नहीं सकती. So he thought कि कैसे वो प्लान करे, मतलब उसका जो प्लानिंग पार्ट था वो स्टार्ट हो चुका था. वो प्लान करना स्टार्ट कर दिया था कि कैसे वो स्टीलिंग करे, कैसे वो उन पैसों को चुराए अनिल से. एंड आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ. मतलब वो क्या प्री प्लान कर चुका था कि मैं पैसे चुराऊंगा और 10:30 एक्सप्रेस लूंगा किसकी, लखनऊ की. ओके, स्लीपिंग आउट द ब्लैंकेट I crept up to the bed. So here the word crept means move slowly and carefully. So he said he sleeping out the blanket. I crept up to the bed. Anil was sleeping peacefully. His face was clear and unlined. So अब उसने क्या करा कि बहुत स्मार्ट वे में बहुत ही स्लोली और स्टिली केयरफुली उसने ब्लैंकेट में से किसके, जैसे हम ब्लैंकेट है, ब्लैंकेट के नीचे कई बार या मैट्रेस के नीचे कई बार पैसे रख देते हैं, तो उसने स्लोली वहाँ पे धीरे से ब्लैंकेट को अपने हटाकर और स्लोली स्लोली वहाँ पे गया. अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली. ही वॉज स्लीपिंग पीसफुली, शांति के साथ सो रहा था. हिज फेस वॉज क्लियर एंड अनलाइंड. सो हियर द मीनिंग इज अनलाइंड. showing no sign of worry and anxiety. मतलब बिना किसी टेंशन के, बिना किसी परेशानी के वो सो रहा था, पीसफुली सो रहा था. I had more marks on my
face, though mine were mostly scars. अभी कह रहा था कि अनिल तो बहुत अनलाइन था, बिना कोई टेंशन के था, बट मेरे फेस पर यानी जो हरी सिंह है उसके फेस पर आप क्लियरली टेंशन और देख सकते हो, क्योंकि वो अब जो काम करने जा रहा था वो एक बहुत टेंशन वाला तो काम था कि वो पकड़ा ना जाए. My hands slid under the mattress, searching for the notes. So he started searching the notes under the mattress. Means जहाँ वो mattress थी उस mattress के अंदर वो search करने लग गया notes को. When I found them, I drew them out without a sound. तो without making any sound, उसने slowly and very much carefully वो जो पैसे थे वो निकाल लिए. Anil sighed in his his sleep and turned on his side towards me. अब सडनली क्या हुआ, जो अनिल हम करवट लेते हैं रात को सोते टाइम, तो वैसे ही एक डीप ब्रेथ लेता है, टर्न अराउंड होता है towards हरी सिंह. I was startled and quickly crawled out of the room. So he went out of the room quickly because क्रॉल करते हुए वो वहां से रूम से चला गया. When I was on the road, I began to run. I had the notes at my waist, held there by the strings of my pajamas. So what he did कि उसमें जो भी उसने नोट थे वो अपने वेस्ट पे बांध लिए थे, और जो भी उसके पजामा की ड्रॉ स्ट्रिंग्स होती है उस ड्रॉ स्ट्रिंग से उसने अपने पजामा के अंदर ऐसे टाइटली बांध कर और वो वहां से भाग गया था. I slowed down to walk and counted the notes, 600 rupees and 50. So वो walk कर रहा था and he counted the money. तो 50 के notes थे और total कितने notes थे? 600 rupees. So I could live like an old rich Arab for a week or two. So he thought कि उसके पास 600 रुपीज़ आ गए हैं, तो अब 600 रुपीज़ से वो किसकी तरह, जो अरेबिक लोग बहुत रिच होते हैं, बिकॉज ऑयल रिच पर्सन में इसलिए कहा गया है कि ऑयल वगैरह होता है वहाँ पर, और वहाँ पे अरबी जो है वो बहुत ज़्यादा रिच पर्सन होते हैं. तो कह रहे हैं कि एटलीस्ट 1 वीक और 2 वीक के लिए तो वो एक अरब जो पर्सनैलिटीज़ हैं, अरबी पीपल हैं, उनके जैसे लाइफ स्पेंड कर सकता है. ऑल राइट. When I reached the station, I did not stop at the ticket office. I had never bought a ticket in my life. Obvious है, he was a expert thief. So वो अपनी लाइफ में he never bought a single ticket. कोई भी टिकट उसने नहीं लिया था. So but dashed. So here the dash means quickly run towards something. किसी की भी चीज़ पे बहुत जल्दी भागना. Straight to the platform. तो प्लेटफॉर्म पे बहुत क्विकली वो भागता है. द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट. लखनऊ एक्सप्रेस बस अभी निकली ही थी. द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इनटू वन ऑफ द कैरेजेस. सो अब ट्रेन जस्ट स्टार्ट ही हुई थी, तो उसने क्या करा, मैंने अपनी स्पीड अप करी एंड एक लॉन्ग जंप लिया और एक कैरेजेस में वो बैठ गए. जो भी ट्रेन के कैरेजेस होते हैं उनमें से एक पे वो उसने जंप कर दिया. बट आई हेजिटेट, ही वॉज हेजिटेट दैट टाइम फॉर सम रीजन आई कांट एक्सप्लेन एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे. एक वन लाइन इज मिसिंग हियर. सो एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे. ऑल राइट. सो अब उसने कहा कि कुछ रीजन से वो हेजिटेट हो रहा था, उसको ऐसा फील हो रहा था. Maybe he realized at time कि कुछ तो उसने मिस किया है या कुछ चांस उसने खोया है. When the train had gone, I found myself standing alone on the deserted platform. So deserted means एक place empty of people, जहाँ पे कोई भी लोग नहीं है, एक अलोन एरिया. तो deserted platform से हमें मतलब है कि बहुत खाली सा प्लेटफॉर्म था और ऐसा लग रहा था कि मैं खुद ही वहाँ पे खड़ा हूँ. आई हैड नो आइडिया वेयर टू स्पेंड द नाइट एंड आई हैड नो फ्रेंड्स, बिलीविंग दैट फ्रेंड्स वर मोर ट्रबल देन हेल्प. सो अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि वन थिंग कि उसके पास अभी नाइट स्पेंड करने के लिए कोई भी जगह नहीं थी, राइट, बिकॉज ही हैड नो फ्रेंड्स.
वो क्या व्हाट ही बिलीव्ड कि अगर उसके फ्रेंड्स होते तो वो और ट्रबल में हो जाता है, हेल्प तो करते नहीं बल्कि और ट्रबल में हो जाता है. एंड आई डिड नॉट वांट टू मेक एनीवन क्यूरियस बाय स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल्स नियर द स्टेशन. सो किसी भी स्टेशन के पास में किसी होटल में भी रुक नहीं सकता था. The only person I knew really well was the man I had robbed. So now he thought कि एक सिर्फ एक only person था अनिल सिंह जिसे वो जानता था, बट उसी को वो उसने ऑलरेडी रॉब कर चुका था. Leaving the station, I walked slowly through the bazaar. तो स्टेशन से जब वो लीव करता है वो किसकी तरफ जाता है? बाजार की तरफ. Curious, eager to know or to learn something. All right, किसी चीज जिज्ञासा हम जिसे कहते हैं in हिंदी. So in my short career as a thief, I had made a study of men's faces when they had lost their goods. So अब you all know कि वो thief है, right? तो as a thief उसने एक चीज स्टडी की और he was very much smart enough to read the men's faces. Like the greedy man showed fear, the rich man showed anger, the poor man showed acceptance. So what are you trying to say in these lines? So यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे कि अभी हमने पढ़ा था कि उसको पता है कि पर्टिकुलर पर्सन किसी सिचुएशन में जब वो रॉब हो चुका है उस सिचुएशन में वो कैसे रिएक्ट करेंगे. सो ग्रीडी मैन जो है वो उसको डर लगेगा क्योंकि वो ग्रीडी था, उसके पैसे चोर, वो तो वैसे ही लालची था, राइट? उसके पैसे चोरी हो जाते हैं तो वो और ज़्यादा पैनिक करने लगता है. एंड द रिच मैन शो एंगर, रिच मैन क्या करता है? गुस्सा दिखाता है. और द पुअर एक्सेप्ट कर लेता है, चलो ठीक है, गॉड विल्स है कि अब कुछ हो नहीं सकता, तो वो एक्सेप्ट कर लेता है कि चलो ठीक है अब मेरे पास कुछ नहीं है और मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ कि मेरे पैसे चोरी हो चुके हैं. बट आई न्यू दैट Anil's face when he discovered the theft would show only a touch of sadness, not for the loss of money but for the loss of trust. But here if we're talking about the Anil expressions or Anil face, तो वो क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे अनिल को जितना मैं जानता हूँ अनिल के फेस पर, तो वो उस सैड नहीं होगा कि उसके पैसे चोरी हो चुके हैं या उसने अपने पैसे खो दिए, बट ही अपसेट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट. वो किस चीज़ पे अपसेट होगा? कि उसने ट्रस्ट खोया है, मतलब उसका जो ट्रस्ट है वो ब्रेक हुआ है. सो बेसिकली कहते हैं कि नेवर ब्रोक अ ट्रस्ट. किसी का भी आपको ट्रस्ट क्या नहीं करना चाहिए? ब्रेक नहीं करना चाहिए. स्पेशली पेरेंट्स का जो ट्रस्ट होता है वो कभी आपको ब्रेक नहीं करना चाहिए. एंड यू शुड नेवर break the trust of your parents, of your siblings or your near and dear ones. I found myself in the Maidan. Maidan here means a ground, and sit down on the bench. अब एक मैदान में एक बेंच पे वो बैठ जाता है. The night was chilly. Chilly means thunder or very cold. It was early November. Early November means it was the month of November. And a light drizzle. So here drizzle means intermittent rain. Intermittent rain बूंदाबांदी जिसे हम कहते हैं, थोड़ी थोड़ी shower rain थी. Added to my discomfort. अब एक लिटिल drizzle सी हो रही थी तो वो मेरे ऐड करती है कि मुझे और डिस्कम्फर्ट करने की ट्राई करती है. Soon it was raining quite heavily. और सडनली जो बारिश है वो तेज हो जाती है. My shirt and pajamas stuck to my skin. अब पानी लगता है तो जो भी आपके अटायर्स होते हैं, क्लोथ्स होते हैं, वो आपकी स्किन से स्टक हो जाते हैं, चिपक जाते हैं. एंड कोल्ड विंड ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस. और जो कोल्ड विंड है वो बहुत जोर से उसके फेस की तरफ होकर निकलती है. ऑल राइट, आई वेंट बैक टू द बाजार एंड सेट डाउन इन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर. So he said he went to the bazaar, and what is the meaning of shelter? A place given temporary protection from bad weather, from bad weather or danger. Alright, तो एक शेल्टर जो हमें बैड वेदर और डेंजर में हमें प्रोटेक्ट करती है
उसे शेल्टर कहते हैं, जस्ट लाइक अ होम और अ रूम. ऑलराइट. सो उसने क्या करा, वो जब बाजार गया था कि एक शेल्टर पे वो बैठ जाता है, क्लॉक टावर होता है वहाँ, शेल्टर होता है वहाँ बैठ जाता है. द क्लॉक शोड मिडनाइट, मतलब मिडनाइट का टाइम हो रहा था, घड़ी टाइम बता रही मिडनाइट का टाइम है. I fell for the notes. They were damp from the rain. So here the word damp means slightly wet. हल्के से गीले हो जाते हैं वो जो notes थे. Anil's money in the morning, he would probably have given me 2 or 3 rupees to go to the cinema. See, उसको कितना कॉन्फिडेंस था कि अगर मॉर्निंग में अगर मैं वहाँ पे होता तो probably or definitely Anil would give him some 1 or 2 or 3 rupees for cinema. But now I had it all. But now, as of now, he had all the money, means उसके पास सारे जो भी 600 rupees थे अब उसके पास ही है सारे. I couldn't cook his meals, run to the bazaar or learn to write whole sentence anymore. But अब उसे एक चीज रियलाइज हो रही थी या एक चीज वो मिस कर रहा था, दैट इज नाउ ही couldn't able to cook his meals, means cook Anil food or run to the bazaar for buying such supplies for Anil, and not to write whole sentence, मतलब अब वो learn भी नहीं कर सकता था whole sentences. I had forgotten about them in the excitement of the theft. So ये सारी चीजें वो भूल चुका था, किसकी एक्साइटमेंट में, चोरी करने के लिए, स्टीलिंग करने की एक्साइटमेंट में. Whole sentence I knew could one day bring me more than a few hundred rupees. So ये कह रहा है कि whole sentence एक दिन मुझे बहुत सारे पैसे दिला सकता था, more than 100 rupees भी. So here he was much aware that education is something which could have given me more than what I have got right now. It was simple matter to steal and sometimes just as simple to be caught. So अब stealing करना ये बहुत simple है, इतना ही simple है similarly जितना हम जब पकड़े जाते हैं. But to be a really big man, a clever and respected man was something else. So but ये क्या था कि वो थोड़ा different है, एक बड़ा आदमी बनना, a very clever person, smart person और respected also. I should go back to Anil, I told myself, if only to learn to read and write. So his inner voice suddenly woke up and he वो खुद से ही कहता है, told himself कि अब मुझे क्या करना चाहिए, I should go back to the Anil, और वहाँ पे क्या सीखना चाहिए, read or write. I hurried back to the room, feeling very nervous, for it is much easier to steal something than to return it undetected. Undetected, not discovered. All right, पता नहीं चलना. तो अब वो बहुत नर्वस होता है, वो रूम पर पहुंच जाता है अनिल के रूम पर, बट ही वॉज वेरी नर्वस बिकॉज किसी को स्टील करना तो ठीक है, थोड़ा इजी काम है, बट वापस जाना और ये फील करना कि वो पकड़ा ना गया हो, तो इट वॉज अ वेरी टफ जॉब. So I opened the door quietly. Slowly उसने door open किया. Then stood in the doorway in clouded moonlight. अब देखता है बहुत clouded सा moonlight था. Anil was still asleep. Anil अभी भी सो रहा था. I crept to the head of the bed and my hand came up with the notes. I felt his breath on my hand. So उसने slowly bed को ऊपर किया, head को और जो hand है उसके अंदर डाला और नोट्स वापस रख दिए, एज इट इज वापस अपनी प्लेस पर नोट्स रख दिए. और ही फेल्ट कि उसको ब्रीथ उसके हाथ पे फील हुई, किसकी, अनिल की, जब वो ब्रेथ कर रहा था. आई रिमेन स्टिल फॉर अ मिनट, देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस एंड स्लिप अंडर इट विद द नोट. अब उसने फील किया कि उसके हाथ जो है वो एज, मैट्रेस के एज पे थे और नोट्स को उसने इजी स्लिप अंदर कर दिया था. I awoke late next morning to find that Anil had already made the tea. So जब वो सुबह उठता है हरि सिंह, so what he found that Anil already made the tea for himself. He stretched out his hand towards me. वो ऐसे stretch करता है hands towards Hari Singh. There was a 50 rupee note between his finger. And my heart sank. So here the meaning heart sank, feel disappointed or discouraged.
सो यहाँ पे वो बहुत डिसअपॉइंट होता है, बहुत डिस्करेज होता है, क्योंकि उसके जो अनिल है उसके पास में कुछ 50 रुपीज़ के नोट होते हैं उसके फिंगर्स में. आई थॉट आई हैड बीन डिस्कवर्ड. सो दैट टाइम ही थॉट, हरि सिंह थॉट कि अब तो वो पकड़ा गया है. आई मेड सम मनी यस्टरडे, ही एक्सक्लेम. सो हियर अनिल सेड कि मैंने कुछ पैसे कल कमाए थे. नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली. सो व्हाट ही डिड अनिल सॉरी, कि अब वो कह रहा है कि मैंने कुछ पैसे कमाए थे तो मैं अब आपको तुम्हें रेगुलरली पे करूंगा. पहले तो उसको पे नहीं करता था, उसको सिर्फ फीड करवाता था, उसको टाइमली फूड प्रोवाइड करते था. बट अब वो कह रहा है कि वो उसको रेगुलरली क्या देगा, पेमेंट भी देगा, सैलरी भी देगा. सो माई स्पिरिट रोज. सो हियर द मीनिंग ऑफ स्पिरिट रोज मीन्स फील हैप्पियर. सो वो बहुत खुश होता है Hari Singh, but when I took the note, I saw it was still wet from the night's rain. So जैसे ही उसने नोट को पकड़ा, so he felt कि वो अभी भी गीले हैं बारिश जो रात में हुई थी उससे. Today we will start writing sentence, he said. So here Anil explained कि आज हम क्या start करेंगे, sentence लिखना start करेंगे. He knew, but neither his lips nor his eyes showed anything. So ऐसा लगता है हरि सिंह को कि अनिल को सब कुछ पता चल गया. He knew everything कि what was happening last night, but neither his lip or nor his eyes say anything. I smiled at Anil in my most appealing way. So he smiled at Anil. Appealing way means बहुत ही खुश होकर, attractive way में. And the smile came by itself without any effort. और ये फर्स्ट टाइम था जो स्माइल थी वो ऑटोमेटिक निकली थी. ऐसा नहीं था कि यहाँ पे वो कुछ प्रिटेंड कर रहा था जैसे वो पहले कर रहा था. ये ऑटोमेटिक निकली थी बिना किसी एफर्ट्स के, विदाउट एनी एफर्ट. सो रस्किन बॉन्ड. सो आई होप आपको ये स्टोरी बहुत पसंद आई होगी और आप इसे कनेक्ट कर पा रहे होंगे कि कैसे किसी का ट्रस्ट है जो कभी ब्रेक नहीं करना चाहिए. ऑलराइट, सो with this we will come to an end of this story. Okay, till then take care. Thank you.